So in number 1, you have been asked that state. We shall go little fast. State which of the following are polygon. State which are polygon. So they have given you figure, isn't it? Here you people can see. Oh my god. See, have a look. They have given you a figure in which is not closed. So when this is not closed, naturally it is not a polygon. Have a look at this particular figure. So in this particular figure, like this, okay, yes. Do you think that this is a polygon? Of course this is a polygon, because here these are the sides of the polygon. Okay. These are the sides of the polygon. 1, 2, 3, 4. Again you have a different figure. Look at here. This is a figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Of course this is a polygon. This is a polygon. This is not a polygon. What do you think about this one? This. Do you think that this is a polygon? So nahi, this is not a polygon. Why? Because here this side is curved. Means we are talking about polygon having straight lines, not curved lines. So this is not a polygon. Similarly, when you have sides like a figure like this, and they ask you whether it is a polygon or not, it cannot be. Why? Because you people can see over here is that these are the two triangles, two polygons which are joined together. So this is actually not a polygon. So no. In number 2, we have something different. Find the sum of interior angle of a polygon. Find sum of interior angle. Interior angles. याद होगा कि when we were dealing with a triangle, we had learnt that the sum of interior angles in a triangle is equal to 180 degree. We had also studied that in a quadrilateral, the sum of angles is equal to this one angle, 2, 3 and 4. The sum of angles is equal to 360 degree. Clear? Similarly, they are asking you that if you have sides more than 4, 4 से ज़्यादा रहे, 5, 6, 7, 8, then in that case, how are you going to find the sum of the interior angles? तो वहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है. क्या? फॉर्मूला लगता है. So in this formula states that the sum of interior angle of any polygon will be equal to n minus 2 into 180 degree. ये n क्या है बाबा? n is the number of side. n is the number of side. Number n is equal to the number of sides. अब देखो, for example, if a polygon has 3 sides, 1, 2, 3, so 3 sides में let us see how are we going to put 3 minus 2 into 180. 3 minus 2, ये क्या मैं कर दिया, 3 minus 2 into 180. So here you will get 1 into 180. 1 into 180 is equal to 180 degree. अगर 4 साइड रहा तो 4 sides, so यार 4 sides में 4 minus 2 into 90 degree 180 degree, ठीक है, is equal to 2 into 180 is equal to 360. ठीक है. एक और छोटा सा 5 साइड वाला निकालते हैं. 5 sides. So अगर 5 sides का बाबू 5 minus 2 into 180, 5 minus 2 into 180 degree, that is 3 into 180 is equal to 540 degree. So these are the
total interior angle of any polygon. ठीक है, come on. So in number 2 you have been given that find the sum of interior angle of a polygon with 9 sides. Means in number 2 they have given you that find total interior angles, total interior angles of a polygon with how many sides? With 9 sides. ठीक है भाई, तो 9 sides में बाबूजी n-2 इंटू 180 डिग्री. n क्या है? नंबर ऑफ साइड है, गला भी भर गया है, खांसना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं है, फिर वही प्रॉब्लम है. n-2 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 9-2 इंटू 180 is equal to 7 into 180 is equal to 1260 डिग्री. सिंपल. अब 13 साइड्स है, 13 साइड्स, तो ठीक है यार, 13 साइड में सेम ड्रामा चलेगा बाबू. n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू n कितना? 13. 13 minus 2 into 180. 13 minus 2 you know is equal to 11. 11 into 180 will be equal to your 1980 डिग्री. सिंपल, कोई टेंशन नहीं है. नंबर 3 आ जाइए फटाफट. फाइंड द सम ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन. अच्छा, अब नया खेल खेल रहा है. फर्स्ट दे गिव यू साइड्स, बोला टोटल एंगल निकालो. अब दे विल गिव यू द एंगल्स, इजंट इट? दे विल गिव यू द टोटल एंगल, बोलेगा अब नंबर ऑफ साइड निकालो. चलो कोई बात नहीं है, इसका भी काम तमाम कर ही देते हैं. फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन. ओके, इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 1440, if total इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1440. तो बेटा जी टोटल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है? टोटल INT, समझ जाओ, इंटीरियर एंगल है, ओके, इज इक्वल टू वही n-2 इंटू 180 डिग्री, है कि नहीं? दिस इज द टोटल इंटीरियर एंगल एंड दे हैव गिवन यू एज 1440. तो ठीक है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n इंटू 100. देखो n-2 इंटू 180, मतलब 180 को मैं n से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 180 को -2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा. रिमेंबर, नॉट विथ 2, विथ -2. सो n इंटू 180 विल बी 180n माइनस 2 इंटू 180 360 इज इक्वल टू 1440. कोई दिक्कत नहीं. सो 180n विल बी इक्वल टू योर 1440. ये -360 का कान पकड़ के इस तरफ ले आओ तो बेटा, तो प्लस 360. ठीक है. सो 180n विल बी इक्वल टू कितना? विल बी इक्वल टू, जब जोड़िएगा तो मिलेगा आपको 1800, isn't it? So value of n will be equal to 1800 divided by 180. तो चलो कैंसिल किया जाए. लेट्स कैंसिल. सो 18 कितना बार में? 18 10 times means you have 10 sides. So this polygon whose total interior angle is 1440, the number of side is equal to 10. Clear? No issue? Come on. Moving on to the next one. Now here let's come over here and see in number 4 what are they asking us. So in number 4 they are asking that they want to test our knowledge कि सच में आपको नंबर ऑफ
टोटल एंगल्स भी निकालने के लिए सिखा दिए हैं, नंबर ऑफ साइड्स भी निकालने के लिए सिखा दिए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज. टेस्ट योर knowledge. In test your knowledge, it is said, they are asking us, is it possible to have a polygon? Is it possible to have a polygon whose sum of interior angle equal to 1030, whose total interior angle is equal to 1030. मीन्स अगर मैं आपको यहाँ पर जिस तरह मैं दिया था यहाँ पे जिस तरह मैं दिया था कि टोटल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 1440, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स वे देयर? 10 साइड्स. तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ आई विल गिव यू 1030 डिग्री, सो कैन यू मेक ए पॉलीगॉन? तो क्यों नहीं बनाएंगे पॉलीगॉन? आप नंबर ऑफ साइड्स देखे तो देखिए, तो जरा देखते हैं बाबू नंबर ऑफ साइड्स कितना निकलता है, इजंट इट? सो लेट अस पुट दिस इनटू फॉर्मूला n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1030. डिग्री भी बाद में लगाएंगे, कोई टेंशन नहीं लो अभी. n इंटू 180 n माइनस 360 जो अभी तुरंत सिखाए हैं जी 1030. सो 180 n माई इज इक्वल टू 1030 प्लस 360 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 1390. So here 1n will be equal to 1390 divided by 180. अब आप देख सकते हैं बाबू कि here you are getting 139 by 18. So 139 by 18, how much will you get? So you will be getting it as 713 by 18. ये तो मजाक हो रहा है यार, पक्का मजाक हो रहा है. हैव यू एवर हर्ड दैट द नंबर ऑफ साइड इज इन फ्रैक्शन? चलो 4 साइड मानते हैं, 4 साइड है, 5 साइड है, 5.5 साइड, मतलब आदमी बिना मुंडी का, सिंपल. देयरफॉर व्हेन यू गेट द वैल्यू ऑफ n इन फ्रैक्शन, इसका मतलब कि यू कैनॉट मेक एनी पॉलीगॉन, नो पॉलीगॉन. ओके, यू कैनॉट मेक ए पॉलीगॉन. तो बोलेंगे नहीं बना पाएंगे, नो. डायरेक्ट लिख देना नो. ओके, डायरेक्ट मत लिखना यार, सॉल्व करके लिखना, डायरेक्ट लिख देना, isn't it? So please do not do this, do not write it directly because marks will also be given directly, okay, without thinking anything that how much you have solved. Coming back to number 5, देखते हैं नंबर 5 में कुछ अगर नया मिल जाए तो. Find each angle of hexagon if all angles of hexagon are equal. They are asking us that if all angles of hexagon are equal, all angles of hexagon, तो पहले ये तो जाने कि ये हेक्सागन में कितना साइड होता है. तो 6 sides, isn't it? Hexagon has 6 sides and they are saying that if all angles of hexagon are equal, तो कोई बात नहीं भाई, all angles of hexagon are equal, तो they are asking us each angle, एक ठो एंगल बताइए. तो देखो जरा सा हम भी जरा सा देख ले. इफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागन विल बी इक्वल, तो पहले ये तो हम निकाले कि टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल ऑफ हेक्सागन. तो यार टोटल एंगल्स ऑफ हेक्सागन विल बी इक्वल टू वही n-2 इंटू 180 डिग्री. मतलब बाबू n इज 6 माइनस 2 लिखो यहाँ पे, 6 माइनस 2 इंटू 180. 4 इंटू 180 इज इक्वल टू कितना? तो 720 डिग्री. चलो, मतलब यू हैव फाउंड आउट ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागन एट 720. अब बोल रहा है यहाँ पे कि जो हेक्सागन जो है ना आपका, ये सब
एंगल्स बराबर है, तो सब एंगल बराबर मीन्स ऑल द साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. Until and unless all sides are equal, all angles cannot be equal. और जब all angles equal हो जाए तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन. क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन. Okay, so here you can easily see that all the angles are equal. 1 2 3 4 5 6, all angles are equal, means sum of all the angle will be equal to 720, है ना. ये वाला देखो 1 2 3 4 5 and 6 equal to 720. This means 6x is equal to 720. X will be equal to 720 divided by 6. तो 720 डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखो ये वाला कितना होगा इज इक्वल टू 120 120 डिग्री. मीन्स ईच एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री. सिंपल. Okay, similarly in the second one they are saying that if all angles of octagon are equal, are equal, number that is the second part. Okay, all angles of octagon तो octagon are equal. तो कह रहा फाइंड ईच एंगल. तो व्हेन ऑल एंगल्स ऑफ octagon are equal, and octagon means 8 sides. तो ऑल एंगल तो निकाल के मैं देख लूँ पहले. तो ऑल एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री. मतलब क्या? मतलब n-2 इज हाउ मच? 8-2. So 8-2 into 180, this means 6 into 180. ये काम करते हैं. 6 into 180 डिग्री will be equal to 1080 डिग्री. ठीक है. So the total angles of octagon equal to 1080. अब बोला एक ठो एंगल निकाल के दिखाओ. तो एक ठो. तो each angle will be equal to 1080 divided by 8 means 8 बच्चा बुतरू में बांट देंगे. ओके, इज इक्वल टू हाउ मच? यू प्लीज फाइंड आउट. ईच एंगल ऑफ ऑक्टागन विल बी इक्वल टू कितना भाई? 135 डिग्री. सिंपल. यू कैन डू डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एनी फिगर. उस पहले वाले में भी आप वही काम कर सकते हैं. व्हेन यू विल बी आस्क्ड ईच एंगल, फाइंड टोटल एंगल एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ साइड्स. क्योंकि रेगुलर है, इजंट इट? देखो फिर गला भर गया. हाँ, जैसे लग रहा है गाना गा रहे हैं. कमिंग बैक टू नंबर 6. इन नंबर 6 व्हाट वी हैव? वन एंगल. अच्छा, अब नौटंकी शुरू हो गया. हियर दे हैव गिवन यू ऑल एंगल्स ऑफ ऑक्टागन, ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागन. नंबर 6 से नया ड्रामा शुरू हो गया. मीन्स दे विल गिव यू 1 or 2 एंगल्स. अब बाकी को बोलेगा दे आर इक्वल, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स. ओके, कमिंग बैक टू नंबर 6. वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल, वन एंगल ऑफ क्वाड, QUAD, भावना को समझ जाइए, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंड दे आर सेइंग दैट ऑल अदर एंगल्स आर इक्वल. ऑल अदर एंगल्स आर इक्वल. सो ऑल अदर एंगल्स आर इक्वल मतलब और 3 एंगल्स आर इक्वल. सो व्हाई नॉट टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल फिगर क्वाड्रिलैटरल रफली. चलो भाई, ये तो 90 डिग्री हमारा हो गया. दिस वाज ऑलरेडी गिवन एंड दिस आर द अननोन साइड्स, अननोन एंगल्स विच दे से दैट बाकी सब एंगल बराबर है. तो देखो ड्रामा क्यों करना है? व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो अलग से टेंशन क्यों ले? अलग से क्यों निकाले कि let us find the total angles of a quadrilateral. मुझे आपको पता है ना, तो you can directly write as 90 plus x plus x plus x is equal to 360
जैसे सॉल्व करेंगे 90 प्लस 3x इज इक्वल टू 360. 3x will be equal to 360 minus 90 will be equal to 270 डिग्री. तो x का वैल्यू बाबू क्या होगा 270 डिवाइडेड बाई 3, 3 का 3, 3 नमा 27, 0. So here you will get x is equal to 90 degree. Means the other angles, other equal angles are 90 degree each. ठीक है. Moving on to the next one, that is number 7. The same thing. मैं जैसे अभी मैं कह रहा था कि they will not give you something very different. Okay. Number 7 says that here this is also a quadrilateral and ratio of angles of quadrilateral. एक मिनट. Ratio of angles of quadrilateral. Okay. Angles of quadrilateral. Okay. Quadrilateral. Ratio of angles of quadrilateral. What are they saying? Is 4 is to 5 is to 3 is to 6. Okay. Just wait for a moment. Okay. Actually, I want to see this is yes. So ratio of angles of a quadrilateral 4 is to 5 is to 3 is to 6 means that you have been given a quadrilateral in which the angles are not 4, 5, 3 and 6 but 4x, 5x, 3x and 6x. So when the ratio of the angles are given, you need to take a common factor as x. So let the common factor FACTOR be x. So common factor is x. Therefore the angles are लिखिए जल्दी 4x, 5x, 3x and 6x. तो ये एंगल्स हम लिखेंगे 4x, 5x, 3x और 6x. आई विल राइट द एंगल्स. कॉमा डालेंगे, रेशियो नहीं डालेंगे यहाँ पे. ठीक है. You have already drawn the figure. You already know that the sum of the angles 4x plus 5x plus 3x plus 6x is equal to 360 degree. You already know it. So when you already know it, why to find out and why to use the formula n minus 2 into 180 degree, isn't it? तो कम चलिए ये काम करते हैं. ये कितना हो गया, इसको जोड़िएगा 5 और 9 9 18. 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो बेटा जी x विल बी इक्वल टू 360 बाई 18. 18 दूनी 36, 20. x इज इक्वल टू 20. डू नॉट राइट डिग्री ओवर हियर क्योंकि x आपका डिग्री नहीं था, आपने कॉमन फैक्टर लिया था. कॉमन फैक्टर. नाउ यू विल फाइंड द एंगल्स. तो निकालिए ना, क्या दिक्कत है. When you have already found out the value of x, तो ये 4x will be equal to how much? So 4x will be equal to 4 into x, that is 4 into 20, हो गया 80 degree. Similarly, your 3x is equal to 3 into 20 is equal to 60 degree. 5x का वैल्यू हो गया आपका 100 degree और फिर 6x का वैल्यू will be equal to 120 degree. कहाँ प्रॉब्लम है? कहीं तो प्रॉब्लम है नहीं. अच्छा 5-10 मिनट और है, देख ही लो इसको. ठीक है. लेट अस कंप्लीट दिस चैप्टर ओनली. अलग से क्यों हम बनाए 7 to 8? बिकॉज आई नो दैट आफ्टर 5 to 10 minutes or 20 minutes you will run away. Please don't run away. One angle of a pentagon is 120 degree. One angle. देखो सब धीरे धीरे करके
पहले हेक्सागन दिया, फिर क्वाड्रिलैटरल, फिर ट्रायंगल, मीन्स दे आर टीचिंग यू एवरीथिंग. वन एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 120 डिग्री. और कह रहा है बाकी एक एंगल 120, तो बाकी 4 एंगल है ना. ओके, तो अदर फोर एंगल्स इज इक्वल टू x ईच. ठीक है, तो पेंटागन जब भी बनाइएगा ना पेंटागन, तो पेंटागन बनाने के लिए एक पेंटागन बनाना भी जानना जरूरी है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल गेट लॉस्ट. कैसे बनाए, तो देखो पेंटागन बनाने का तरीका, एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे एंड देन ड्रॉ लाइक दिस, join like a home. So here you have a pentagon, and in this pentagon they are saying that one angle of a pentagon is 120 डिग्री. तो चलो एक काम किया जाए, इसी को लेते हैं 120 डिग्री, एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, मीन्स x x x x. तो बेटा जी हमें तो ये पता नहीं ना है कि टोटल एंगल्स कितना है. हियर इन दिस क्वाड्रिलैटरल यू न्यू, पहले से आप पढ़े हुए थे, दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इक्वल टू 360. तो आपने 360 यहाँ पे चिपका दिया. बट हियर यू विल हैव टू फाइंड आउट ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन. सो ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन मीन्स टोटल एंगल of pentagon will be equal to how much? Will be equal to your n minus 2 into 180, n minus 2 into 180 degree, that is 5 minus 2 into 180 degree, 3 into 180 degree is equal to kitna, 540 degree. So now you got the total angles of pentagon equal to 540. अब लगाइए ना 120 एक एंगल, बाकी x x x और x मिला के 540 डिग्री. ठीक, सो 120 प्लस 4x इक्वल टू 540 डिग्री. 4x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 540 माइनस 120. सो 540 minus 120 will be equal to how much, 420. So what will be the value of x? X will be 420 divided by 4. यहाँ पे this is very important. How? At least 90% of the children, not 95% of the children in the class had made mistake. 4 ones are 4, 5 नहीं होगा, 0 5, because you are taking two numbers while cancellation, two number. तो पहले 4 ones are 4, फिर 2 नहीं जाएगा, 0 डालेंगे, फिर 0 लेंगे, and 4 5s are 20. So please do not do this all kind of mistake. X here you can write it as 105 degree. क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे the angle was x only. Okay, moving on to the next one. आगे बढ़ते हैं, that is नंबर 9 और 10 है. तो दो है, नंबर 9 और 10 है, तो इसको बनाने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. हियर वी हैव इन नंबर 9 में आई होप यू पीपल कैन डू इट योर सेल्फ. फिर भी देते हैं बना, दैट रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन. फिर यहाँ पे दे दिया आपको पेंटागन कितना है, 5:4:5:7:6. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था, लेट x बी कॉमन फैक्टर. तो व्हेन x विल बी योर कॉमन फैक्टर, तो नेचुरली द एंगल्स विल बी व्हाट, सो एंगल्स विल बी योर 5x 4x 5x, 7x एंड 6x. याद रखना है, यहाँ पे रेशियो नहीं डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर यू पुट x इट बिकम्स द वैल्यू ऑफ द एंगल्स. समझो, ठीक है. एक काम करते हैं, ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों ना एक छोटा सा फिगर बना ले, नहीं, सो दैट इट लुक लिटिल इंटरेस्टिंग. सो 5x 4x 5x
7x and 6x. तो बेटा जी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दिस पेंटागन विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो हमें तो पता नहीं है, तो मुझे तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? सो टोटल इंटीरियर एंगल will be equal to how much? n minus 2 into 180 degree, that is 5 minus 2 into 180 will be equal to कितना? 3 into 180 540 डिग्री. अब करेंगे that 5x, now 5x plus 4x plus 5x plus 7x plus 6x is equal to 540 degree. So when you will add all this, what will you get? You will get 27x is equal to how much? Is equal to 540. x का वैल्यू 540 डिवाइडेड बाई 27. कितना प्यारा सा नंबर दिया यार, देखो अपने आप कैंसिल हो रहा है. 27 टू टाइम्स. सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20, नॉट डिग्री, बिकॉज इट इज अ कॉमन फैक्टर. तो बेटा जी करना क्या है? करना ये है हमें कि फाइंड ईच एंगल. अब जैसी बात है, x निकाल के कोई बड़ा सा तीर तो मार लिए नहीं है. यू विल हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर. आइए ना तो निकालते हैं. 5x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100. 4x will be equal to 4 into x यानी 4 into 20 is equal to 80. उसी तरह 6x का वैल्यू आप लोग खुद निकालिए as 120 and 7x will be equal to 7 into 20 140 degree. Clear? I hope this is very clear. Okay. द लास्ट वन एक छोटा सा सम है, इसे मैं यहीं पर बना के ख़त्म देता हूँ कर नहीं. लेट अस फिनिश इट हियर ओनली. इन नंबर 10 व्हाट आर दे सेइंग? दैट टू एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन आर 90 and 110. टू एंगल्स ऑफ हेक्सागन आर how much? Are 90 degree and 110 डिग्री. और कह रहा बाकी इक्वल है, रिमेनिंग इक्वल. ठीक है, तो कोई बात नहीं है. पहले टोटल एंगल्स ऑफ हेक्सागन तो निकाल ले बेटा. तो हेक्सागन मीन्स 6 साइड. सो हेक्सागन का टोटल इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू कितना? 6 minus 2 into 180 डिग्री, that is 4 into 180 is equal to 720 degree. निकल गया total angle of a hexagon. Now since all others are equal, remaining are equal, यहाँ पे लिख देते हैं remaining are equal. So when remaining are equal मतलब पहला वाला 90, फिर दूसरा वाला 110 डिग्री, फिर तीसरा वाला x और x, बाकी चारों बराबर है, इज इक्वल टू 720 डिग्री. कुछ नहीं, यू विल हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, तो ये हो गया आपका 200 अब प्लस 4x इज इक्वल टू 720 डिग्री. तो हमारा 4x विल बी इक्वल टू 720 माइनस 200 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 520. तो बेटा जी x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 520 बाई 4. सो 520 बाई 4 कितना हो गया? इक्वल टू 4 का 4 तिया 12 130 डिग्री. सो ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज इक्वल टू 130 डिग्री. आई थिंक आई हैव बीन एबल टू मेक you understand this particular chapter. Please revise it. देखो रिवीजन बहुत ज़रूरी है. अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो naturally you will forget everything. हम खुद forget करते थे तो आप लोग किस खेत की मूली है, isn't it? Come on, wait for the next chapter. Thank you.